So, good morning, class. This is the last class on environmental issue, and in this class, I will discuss about the some cases which are addressing the environmental issue. Actually, they are addressing against the environmental issue, because in recent year we are continuously going on and get modernized, and due to the urbanization, a lot of forest will get suffer are so suffered for the uh, purposes of human being. So this forest having a lot of the different kinds of community, and example of such communities are tribal communities in our India. India has a great diversity, because a lot of forest in India can be seen, and in these different kinds of forest, tribal communities are inhabited in that particular area. So due to the tribal community, the balances between the forest balances between the ecosystem and their own uh, own purposes get balance between them. But in recent time, we are continuing we are continuing destroy we are continuing cutting the different kinds of trees which are so useful and so important for all living beings, uh, and as well as the tribal communities. So what happened, पिछले जब से आज़ादी के बाद से, जब इंडिया को हर चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी, वो ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश में बहुत सारे फॉरेस्ट को कट करके वहाँ हाईवेज़ बनाना, सॉरी ओवरब्रिज बनाना, एंड रेल ट्रेन पटरी बनाना, ये सभी की वजह से जो फॉरेस्ट था वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो उनमें से कुछ ऐसे केसेस थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे, जो कि इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में हेल्प किए थे। उसमें से सम केसेस मूवमेंट्स, सेवरल काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए ट्राइबल कम्युनिटी ने इनमें अपना अपना रोल दिया था। ट्राइबल कम्युनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी होती है। वो जितने भी ट्राइबल लोग हैं वो अपने रिसोर्सेज को अपने जितने भी ज़रूरत के सामान हैं वो इसी फॉरेस्ट के प्लांट और ट्रीज़ पर ही वो निर्भर करते हैं। तो इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने ही कभी बहुत सारे इन्वायरमेंटल एक्ट को रोकने की कोशिश की। उनमें से कुछ हैं बिश्नोई एजिटेशन इन राजस्थान, देन चिपको मूवमेंट, देन एपिको मूवमेंट। ऑल दिस काइंड ऑफ मूवमेंट्स save our forest ecosystem. For it conserve the forest resources due to the help of tribal communities. This Bishnoi agitation in Rajasthan. So let's talk about the some movements which are happened in India. So this Bishnoi agitation, first Bishnoi agitation movement, it happened in the 1731. King of Jodhpur, Rajasthan. In this wood for constructing a new place, पैलेस, मतलब जो वहाँ के राजा थे उन्हें पैलेस बनाने के लिए सारे वुड को उसको यूज़ करना था। लेकिन बाद में बिश्नोई वोमेन थी एक, अमृता देवी, इन्होंने इन सभी जो पेड़ हैं उनको बचाने के लिए इनको एक मूवमेंट चलाया, दैट इज़ कॉल्ड बिश्नोई एजिटेशन इन राजस्थान। So the minister and co-worker went to forest near a village
and this inhabited by the Bishnoi communities. This Bishnoi communities is a tribal communities. They they deny to cut down trees in their village. So this most important personality is Amrita Devi. They exemplary courage by hanging a tree. उन्होंने क्या किया कि उस ट्री को उससे जाके हैंग कर लिया, ठीक है। वो उससे जाके उससे जाकर चिपक गई। तो उससे क्या हुआ कि उनको देखा जो और भी बिश्नोई ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो भी सारे उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के सभी पेड़ों पर जाकर के उससे लिपट गए। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने अपने इस बिहेवियर से ये जताने की कोशिश किया कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, बिकॉज़ इन सभी चीज़ों से हमारे ज़िंदगी अफेक्टेड है। अगर ये नहीं रहे तो हम लोग नहीं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ड्यू टू दिस मूवमेंट, this movement is known as a Bishnoi agitation, and for their courage government start thinking and decided that they don't go to disturb the forest ecosystem of the Rajasthan. So due to the Amrita Devi and Bishnoi communities, बाद में इंडिया ने इनके नाम से एक नेशनल अवार्ड जारी किया फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगर कोई भी इंसान वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में अपना रोल देता है तो उसको लिए अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड दिया जाता है इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई, जो कि सेक्रीफाइस हो गई थी उस पेड़ों को बचाने के लिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट मूवमेंट इन राजस्थान। सेकंड उत्तराखंड में भी देखने को मिला है। उत्तराखंड में जो देखने को मिला है दैट इज़ कॉल्ड चिपको आंदोलन। दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द बिश्नोई मूवमेंट। दे आल्सो एक्चुअली दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1970। क्लियर। सो बिश्नोई मूवमेंट जो थे वो 1731 में के आसपास हुए थे, लेकिन चिपको मूवमेंट जो 1970 के आसपास हुए। और ये इनका लोकेशन कहाँ है? टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। पहले टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश में था, अब वो उत्तराखंड का पार्ट है। तो दिस चिपको मूवमेंट इज स्टार्टेड इन दिसंबर 1970 इन टिहरी गढ़वाल ऑफ उत्तराखंड। उस समय ये यूपी में था। ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। टिहरी गढ़वाल 1970 में यूपी का पार्ट था, जो अब जा कर के 2000 के बाद जब उत्तराखंड अलग से राज्य बना तो उसमें ये इस उत्तराखंड में चला गया। So it is also an outstanding example of people movement. Actually, these are also influenced by the tribal community which are inhabited in the Tehri Garhwal district of the UP. Gopeshwar and neighboring village of Garhwal were devastated by flash flood in Alaknanda river. So there was clear evidence that floods were caused by the man-made erosion, जबकि ऐसा नहीं था। That if erosion is continue, literally wipe off the hill people। तो वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ होते तो वो भी इस फ्लड की वजह से वहाँ पर उन सभी की जान चली जाती। तो फिर इसको बचाने के लिए इसको वहाँ के फॉरेस्ट हैव बीन रिवेज्ड बाय कंस्ट्रक्शन क्रू। वहाँ पर लोग इस पर्टिकुलर रीजन को इसके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गए। तो वहाँ पर इस टाइप के जो चिपको मूवमेंट देखा गया। वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं वो ट्रीज़ पर जा कर के ट्री को हक कर लिया और उसको इस तरीके के बिहेवियर को वो जताने की कोशिश कर रहे थे कि ट्री को हम काटने नहीं देंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड चिपको आंदोलन। चिपको मीन्स हर एक वहाँ पर जितने भी पेड़ थे उन सभी से जा कर के लिपट गए। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ चिपको आंदोलन। एंड द लीडरशिप द लीडर हु वाज द लीडर ऑफ चिपको आंदोलन चिपको मूवमेंट, दैट इज़ सुंदर लाल बहुगुणा। He was the leader at that time.
and in his leadership various kind of other tribal communities joined and prevent to cutting down of the trees at the which are located in Tehri Garhwal region. Bahguna is stressed it is actually help to protect the soil and water by the ban tree felling in Himalayas at the UNEP meeting London. सो ये जो सुंदरलाल बहुगुणा है बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं चिपको आंदोलन मूवमेंट में। सेकंड बाद में इनकी टीम बहुगुणा और इनकी टीम को उसके बाद श्रीनगर सिलगुड़ी इनको काम दे दिया गया। श्रीनगर एंड सिलगुड़ी को इस वहाँ पर भी इन्होंने वहाँ के फॉरेस्ट और इकोसिस्टम को मेंटेन किया। तो बहुगुणा टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ द मूवमेंट। सो दिस चिपको मूवमेंट इज़ it is related to the Uttarakhand Tigri Garhwal region and this is called Chipko movement. Third Apico Chal Valley movement, it is also related to the Chipko movement. It happened in the September 1983 and it is so similar to the Chipko movement. It is started in the Salkani village of North Kannura district of Karnataka. A group of tribal marched 8 kilometers to Kelly's forest where the contractor's ex-man had turned area into the slaughterhouse. सो स्लॉटर हाउस बनाने के लिए वहाँ के पर्टिकुलर फॉरेस्ट को वो वहाँ के ट्री को फिनिश कर रहे थे। तो ये बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पर जा कर के उसको इसके अगेंस्ट वर्क किया ताकि वहाँ के फॉरेस्ट को बचाया जा सके। फोर्थ वन इज़ साइलेंट वैली एजिटेशन। it is very important and it also happen in the Silent Valley region of Kerala. So what is in Silent Valley agitation? In the Silent Valley various Silent Valley project it is used to increase the power generation in that particular region. मीन्स साइलेंट वैली में वो पावर जनरेशन के प्लांट लगाने वाले थे। उससे क्या होगा, पहला केस तो वहाँ था कि वहाँ पर कोई कोल माइनिंग नहीं थी, इसलिए वो लोग कोल को यूज़ नहीं कर सकते थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के लिए। इसलिए वहाँ पर जो वाटर है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहाँ के जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के जो पर्सन थे पीपल थे, वो वहाँ पर इस टाइप के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को सेटअप करने से रोक रहे थे। ठीक है, बहुत सारे जो कंजर्वेनिस्ट हैं उन्होंने इस पर ऑब्जेक्ट किया और इसको रोक दिया। दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट पावर नीड टू पुट सेफ्टी मेट। सो ये जो थे कुछ मोमेंट थे जो इम्पॉर्टेंट। इससे ये पता चलता है कि इंडियन पीपल एक्चुअली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो नेचर से कितना जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से अभी तक बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, सो दीज आर दी सर्टेन काइंड ऑफ मूवमेंट विच आर डन बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट जो होंगे दैट इज़ 1980 में एक कॉन्सेप्ट जारी किया गया है दैट इज़ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इनका फंक्शन क्या है? एक्चुअली दे वर्क विथ लोकल कम्युनिटीज़ टू प्रोटेक्ट एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट। सो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो 1980 में स्टार्ट किया था गवर्नमेंट के थ्रू, और यहाँ इनके जो वर्कर हैं वो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ मिल करके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की और उनको मैनेज करने की फ्लोरिश करने की कोशिश कर रहे थे। इनका ये एम होता था। इन बाद में उसके बदले लोकल कम्युनिटीज़ वर गिवन एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज बेनिफिट टू वेरियस प्रोडक्ट। और जब ये लोकल लोगों के साथ मिलकर के काम करते थे तो लोकल लोगों को, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट उनको रोज़गार देते थे, जैसे कि फ्रूट्स, गम, रबर, मेडिसिन, इस टाइप के जो वेरियस प्रोडक्ट हैं उनको बनाने में
उनको प्रमोट करते थे ताकि उनको इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। सो बाय दिस एफर्ट फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व इन सस्टेनेबल मैनर। ठीक है, या इस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की वजह से फॉरेस्ट को कंजर्व किया गया है और उनको लोकल पीपल को लेकर के। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव इन पॉजिटिव वर्क बाय द गवर्नमेंट। वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये डिग्रेडेड सेल फॉरेस्ट, दिस इज़ इनैक्टेड बाय द वेस्ट बंगाल 1972। वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड इट्स फेलर इन रिसीविंग द डिग्रेडेड सेल फॉरेस्ट। जो साल फॉरेस्ट हैं उनको उनके ऊपर ये था और इन्होंने फिर वहाँ के जो फॉरेस्ट थे, जो साल फॉरेस्ट थे, उसको बचाया, उनको मैनेज किया और उनको काफ़ी अच्छे से सर्विलांस करके ग्रो करवाने की कोशिश किया। AK बनर्जी कमेटी जो होती है, AK बनर्जी इन्वॉल्व इन विलेजर्स इन प्रोटेक्शन 1272 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट से साल के फॉरेस्ट से उन्होंने इन लोकल पीपल के साथ मिल करके AK बनर्जी ने उस साल फॉरेस्ट को डिग्रेड होने से बचाया। ठीक है, इन द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। So this is very important initiative which is done by the different kinds of personality and tribal communities. So that's all for today.